بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ میں ایک آفس میں ریسیپشن پہ کام کرتی تھی۔ میرا نام انم ہے اور میں اور میری چھوٹی بہن سدرا دونوں ہی ابو کے جانے کے بعد شدید مشکلات سے گزر رہے تھے۔ چھوٹی بہن نے جیسے ہی مجھے کال کی، آپ بھی ہاسپٹل جلدی آ جائیں۔ میں آفس والوں کی منت ترلے کر کے فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلی۔ میرے ابو کو فوت ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میں پہلے ٹیچنگ کرتی تھی، پھر ایک دوست نے مجھ کو ایک کمپنی میں ریسیپشن کی جاب دلا دی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میری فیملی میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ ابو کے 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، اسی طرح امی کے بھی بھائی تھے، مگر ہم یتیم بہنوں کے لیے کسی کے دل میں جگہ تھی نہ زندگی میں۔ بس شکر یہ تھا کہ چھت اپنی تھی۔ 5 سالوں میں نے ہر رشتے کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا۔ لوگوں کی نظر میں آوارہ بد چلن تھی، کیونکہ میں باہر نکل کر مجبور تھی روزی روٹی کمانے کے لیے، مگر ساتھ ہی ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ ہمارے والد صاحب تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اب اتنے عرصے سے امی کی بیماری نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ امی کو آخری سٹیج کا کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا۔ بہنوں کے لیے رکھی گئی جمع پونجی بھی امی کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی۔ امی کا رہا سہا زیور بھی بک چکا تھا، مگر علاج کی ابھی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جب ہاسپٹل پہنچی تو چھوٹی بہن بدحواسی سے چاچو اور پھپھو کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ امی ایمرجنسی وارڈ میں تھیں۔ 4-5 گھنٹے قیامت کی طرح گزر گئے اور آخر میں ڈاکٹر نے وہی خبر سنا دی جو ہم دونوں بہنیں جانتی تھی۔ امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں اتنی بھری دنیا میں ایک دم اکیلے ہو گئے۔ ہاسپٹل سے گھر کس طرح آئے یہ بھی ہم دونوں کو معلوم نہیں۔ دنیا دکھاوے کے لیے تینوں چچا مل کر امی کی آخری رسومات ادا کر رہے تھے، مگر میں اور میری بہن آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ہول رہی تھی۔ میں مکمل خاموش تھی، مگر چھوٹی اتنی سی عمر میں اکیلے رہ جانے پر بار بار اپنے حواس کھو رہی تھی۔ وہ چلا کر یہی کہتی، امی ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، اب یہاں کس کے سہارے جئیں گے۔ آخر امی کو ان کے آخری سفر کے لیے لے جایا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ یہ امی کی وفات کا 3را دن تھا۔ میری چھوٹی بہن نہ جانے کب روتے روتے میری گود میں سر رکھ کر سو گئی تھی۔ ہم دونوں کو کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ میں اس کو بستر پر صحیح کر کے لٹانے کے بعد پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آ گئی۔ مجھ کو آواز آ رہی تھی جیسے کہ پھپھو اور چاچی کوئی بات کر رہی ہوں۔ میں پانی پی کر اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی کہ تم فکر ہی نہ کرو، وہ دونوں کچھ نہیں کر پائیں گی، ہم ان کو اتنی مضبوطی سے اپنے جال میں پھنسا لیں گے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ جب تک بھابھی زندہ تھی تو ہمارا راستہ بند تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ گھر اپنے نام کروا لیں۔ یہ آواز میری پھپھو کی تھی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر بڑی چاچی پھپھو کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھی۔ اب میں نے دھیان سے ان کی ساری باتیں سننا شروع کر دی۔ پھپھو کا بیٹا امجد نہایت نکھٹو اور غیر پڑھا لکھا انسان تھا۔ کچھ رشتہ دار کہتے تھے کہ یہ چرس کا نشہ بھی کرتا ہے۔ جب بھی گھر آتا اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہر وقت لال رہتی اور یہ ہمیں اس طرح سے دیکھتا، نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ امی بھی اس کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہم دونوں بہنوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ فری ہو جائے، مگر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو سختی سے سمجھا رکھا تھا، خاندان کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ بلا ضرورت کوئی بات نہ کرے، اور اگر اس کو کبھی کوئی پریشانی ہو تو وہ سیدھی میرے پاس چلی آئے۔ جیسے جیسے چاچی اور پھپھو کی باتیں سنتی جا رہی تھی، میرا غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ دونوں چاہتی تھی ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ان کے گھروں میں ہو جائیں۔ چاچی کا بیٹا کمیشن کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا اور وہ اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھا۔ چاچی کا پلان یہ تھا کہ وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دے کہ کاشان مجھ سے دنیا کو دکھانے کے لیے نکاح کر لے، ایک طرف میں ہمیشہ کے لیے ان کے گھر میں پڑی رہوں، اور جب وہ پاس کر کے کچھ بن جائے تب اپنی کلاس فیلو سے اپنی مرضی کی شادی کر کے کسی بھی شہر میں پوسٹنگ لے کر رہنا شروع کر دے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہے کہ انم سے شادی میں نے صرف اس کو سہارا دینے کے لیے کی تھی، اور سدرا کا رشتہ اپنے بیٹے امجد کے لیے لے لیں۔ اس کے لیے وہ امی کے 40ویں کا انتظار کر رہی تھی کہ جب تینوں چچا اور پھپھو مل کر خاندان والوں اور شہر والوں کے سامنے یہ بات کریں تاکہ ہم دونوں بہن انکار نہ کر سکے اور پورے خاندان اور شہر میں بھی
इनकी वाह वाह हो जाए। मैं सारी बातें सुनकर गुस्से से खौल उठी, मगर ये वक्त जोश का नहीं। मैं बचपन से ही बहादुर थी। मेरी माँ और बाप ने बहुत कठिन वक्त गुजार कर ये घर बनाया था। मैं इतनी आसानी से अपने माँ बाप की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती थी। कमरे में आकर मैंने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और अपनी बहन के सर पर हाथ फेर कर उससे ये वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं उसकी जिंदगी को जहन्नम नहीं बनने दूंगी, और फिर सुकून से सो गई। अम्मी के इंतकाल को छठा रोज था। मेरे दफ्तर से फोन आ गया कि आप अपनी ड्यूटी पर जल्द से जल्द वापस आएं, वरना हम कोई दूसरी रिसेप्शन ढूंढ लेंगे। मैंने छोटी बहन को बताया, सिद्रा बेटा ऑफिस लाजमी जाना होगा। दुखी दिल से तैयार हुई। फूफी हमारे पास ही रहती थी और चाचियां दिन में 2 से 3 दफा चक्कर लगा लेती थी, क्योंकि उनके घर जरा से फासले पर थे। मैंने सिद्रा को कहा कि अगर अमजद घर पर आकर तुमसे कोई बात करने की कोशिश करे तो बिल्कुल खौफजदा मत होना, और कोशिश करना कि काम जल्दी खत्म करके अपने कमरे में बैठी रहो। मैं जो कुछ रात सुन चुकी थी, मुझे जल्द से जल्द कोई कदम उठाना था, वरना मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। दूसरी फिक्र मुझे बेघर होने की भी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारी शादियां अपने घरों में करवा कर इन लोगों ने पहला काम घर फरोख्त करने का करना था। नाश्ता मैंने बना दिया था। जैसे ही मैं तैयार होकर कमरे से निकली, सामने फुफ्फो खड़े तेवरी चढ़ाकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, माँ के मरे को अभी दिन ही कितने हुए हैं जो तुम कंधे पर झूला उठाकर चलती? कोई शर्म लिहाज है या नहीं तुम्हारे अंदर? पहले बाप मर गया तो तुम्हारी माँ उल्टी सीधी हरकतों पर पर्दा डालकर बैठी रही, लेकिन अब तो खुदा का खौफ करो। माँ के मरते ही तुम फिर नौकरी के नाम पर गुलछर्रे उड़ाने निकल खड़ी हुई। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर से बाहर कदम रखने की। जाओ जाकर बैग कमरे में रखो और सुकून से घर बैठो। मैंने पुप्पो के बिल्कुल सामने जाकर मजबूत लहजे में उनकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहा, बेहतर है कि आप मेरे मामलात में दखलंदाजी ना करें। जब मेरा बाप हम दोनों को छोड़कर फोत हुआ, उस वक्त कहाँ थे आप लोग? जब मैं घर में ट्यूशन पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर पा रही थी, तब कहाँ थे आप लोग? मैं अपनी माँ को बचाने के लिए घर का सामान बेचकर इलाज करवा रही थी, कहाँ थे आप लोग? अब मेरी माँ मर गई है तो आपको याद आ गया है कि आप लोग हमारे बड़े हैं। मैं और मेरी यतीम बहन घर बैठकर भूखे मरें, फिर भीख मांगकर खाएं? खाने के लिए कमाना लाजमी है। फूफी जान, मेहरबानी करके दोबारा मुझे रोकने या टोकने की कोशिश मत कीजिएगा। सिद्रा नाश्ते से फारिग होकर घर की सफाई करना और कमरे में बैठकर पढ़ाई करना। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की, और दरवाजा बंद कर लो। सिद्रा खौफ से फूफी के चेहरे की तरफ देख रही थी। मैंने उसकी आंखों में तसल्ली का इशारा किया। वो मेरे पीछे चली आई। मैंने दरवाजे के पास आकर उसको गले लगा लिया और कहा कि बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम मजबूत रहना और मेरा साथ देना। उसके माथे पर प्यार करके मैं बुझे दिल से दफ्तर जाने के लिए निकल गई। आज कंपनी के ऑनर खुद दफ्तर आए हुए थे। मुझे पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गया था। मैं दिल ही दिल में दुआ पढ़ती हुई जैसे ही जाकर रिसेप्शन पर खड़ी हुई, फौरन मुझे अंदर जाने का हुक्म मिल गया। मैं डरते डरते बॉस के कमरे में गई तो वो कड़े तेवरों के साथ मेरे मुंतजिर थे। मैंने उनको लरजती हुई आवाज में सलाम किया। उन्होंने गुस्से से सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं किया और कहने लगे, मिस अनम, ये एक प्राइवेट कंपनी है, पहले भी आप बार बार छुट्टी लेती रही हैं। हमने आपको कुछ नहीं कहा, जितना हो सकता था आपके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। अगर आपकी मजबूरियां इतनी ही अहम हैं आपके लिए तो फिर आप घर बैठ जाएं। हम आपके लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मैंने बोलने की कोशिश की तो उन्होंने कड़े तेवरों के साथ मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, जाने वाले जा चुके हैं, आपके घर बैठ जाने से क्या होगा? ये जिंदगी है, अगर काम करना है तो फिर करना है। मैंने सर झुकाकर उनको माजरत की और कहा कि सर आइंदा कोई छुट्टी नहीं होगी, और प्लीज़ मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी इसी नौकरी के सहारे चलेगी। इतने में कोई तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चलाया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना रोऊं, मगर मेरा दिल उस वक्त इतना दुखी था कि मैं खुद पर इख्तियार ही न कर पा रही थी। जब बॉस ने मुझे इतनी बुरी तरह रोते हुए देखा तो वो भी नरम पड़ गए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जाकर रिसेप्शन पर खड़ी हो जाऊं। उन्होंने मुझे नरमी से कहा कि बैठ जाएं। दूसरा आने वाला शख्स बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। वो एक अच्छी हाइट का खूबरू नौजवान था। उसने शोखी से पूछा, एहसन यार, ऐसा तुमने क्या कह दिया इन मैडम को कि इन्होंने गंगा और जमुना दोनों एक साथ ही बहा दी? बॉस ने उसके कंधे पर मुक्का मारा और कहा, शर्म करो बासित, हर वक्त मजाक का नहीं होता। मिस अनम की वालिदा का इंतकाल हो गया है,
ये आज 1 हफ्ते बाद ऑफिस आई हैं। मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने इनको डांट दिया तो वो नौजवान खफगी से बॉस को घूरने लगा और उठकर पानी का गिलास पेश कर दिया। मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत अजीब सी हो रही थी। मैं बहुत मजबूत लड़की थी, मगर मालूम नहीं क्या वजह थी कि आज मैं खुद को बुरी तरह बेबस पा रही थी। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया तो मेरे हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। पानी पीने की कोशिश में मेरे ऊपर ही छलक गया। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस लम्हे मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके वजी चेहरे पर मेरे लिए बहुत कुछ था। मैंने टिश्यू लेकर पानी का गिलास रख दिया। मैं कोशिश कर रही थी जल्द से जल्द खुद को कंपोज कर लूं और बाहर जाकर अपने काम पर खड़ी हो जाऊं। बॉस भी अब परेशान हो चुके थे। वो नौजवान जिसका नाम बासित था, उसने बिना कोई लिहाज किए बास को सख्त सुस्त सुना दी। फिर उसने मुझसे मेरी वालिदा का अफसोस किया। मेरी हालत काफ़ी हद तक संभल गई थी। मैंने वहाँ से उठने की कोशिश की तो सर अहसन और बासित ने मुझे कुछ देर रुकने का कहा। फिर बॉस ने कहा, मिस अनम, वालिदा का इंतकाल बहुत बड़ा नुकसान है, मगर जो अल्लाह की मर्जी। अब आपको अपने वालिद के लिए खुद को संभालना होगा। उनके ये अल्फाज सुनकर मैं उस दफ़ा और भी बुरे तरीके से रो पड़ी। तब एहसन सर ने उसे कहा, बासित, इनके वालिद का इंतकाल 5 साल पहले हो गया था। ये तब भी इस ऑफिस में जॉब करने लगी थी। ये अपने घर का बेटा भी हैं और बेटी भी। इनका कोई भाई नहीं है। वालिदा भी काफ़ी अरसा बीमार रहकर 1 हफ्ता पहले इंतकाल कर गई हैं और मेरा इनको डांटने का मकसद सिर्फ ये था कि ये अपने दुख से निकलकर काम पर ध्यान दें। जितना ये छुट्टी करेंगी या घर पे रहेंगी, ये उनकी जॉब के लिए और उनके खुद के लिए सही नहीं होगा। दफ्तर से बहुत से लोग इनकी कंप्लेन बाबा को कर रहे थे। मैंने ये चाहा कि बाबा इनको जॉब से ना निकालें, इसलिए इनको सख्ती से ट्रीट किया ताकि वापस काम पर जल्द आ जाए और इनकी जॉब को ख़तरा ना हो। क्योंकि तुम जानते हो, बाबा वैसे तो अक्सर मुल्क से बाहर रहते हैं, लेकिन अगर वो कराची आ गए और उन्हें पुराने मुलाजमीन ने भड़काया तो मैं उनकी जॉब नहीं बचा सकूंगा। मैंने एहसान मंदी से एहसन सर की तरफ देखा और इनको कहा, सर बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा छुट्टियां ना हो। बासित ने नरमी से कहा, मिस अनम, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। मैंने एकदम से उनके चेहरे की तरफ देखा। उस इंसान की आंखें बहुत ही रोशन और खूबसूरत थीं। मेरे दिल से एक हुक उठी। ना जाने मेरे दिल में क्या समाई। फिर मैंने जो सारी बातचीत रात अपनी फुप्पी और चाची की सुनी थी, वो सारी कहानी सर एहसन और बासित को सुना दी। वो दोनों हैरत में डूब गए। मैंने उन दोनों से कहा, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना और अपनी बहन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करूं। सर, हमारा कोई भी रिश्तेदार इस सूरत हाल में हमारे साथ मुखलिस नहीं है। मुझे खुद से ज़्यादा अपनी छोटी बहन की फ़िक्र है। वो तो अभी बच्ची है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उसकी शादी किसी नशई के साथ हो गई। और साथ ही मुझे ये खौफ भी है कि मैं ज़्यादा देर तक अपने ख़ानदान वालों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकूंगी। बस यही बात है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बासित ने एहसन की तरफ देखा। दोनों पुरसोच नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर एहसन सर ने कहा, अनम, आप अपने डेस्क पर जाएं, हम दोनों कुछ सोचते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में। मेरी ज़िंदगी में ये पहली मर्तबा था कि मैंने घर के बाहर किसी बंदे से अपनी ज़ाती प्रॉब्लम शेयर की थी और अब मुझे थोड़ा खौफ भी आ रहा था। जाने ये दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कैसी लड़की है। मैंने परेशानी से उन दोनों को देखा और कहा कि सर माजरत, बस हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इस वजह से न जाने क्या सोचकर मैंने आप दोनों से अपना मसला डिस्कस कर लिया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। उस पर उन दोनों ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते दूसरे इंसान की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप और आपकी बहन किसी गलत फैसले की भेंट ना चढ़ें। मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई थी। जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मैंने उन दोनों से बात करके सही फैसला किया है। और था ही कौन हमारा कि जिसके सामने जाकर मदद की भीख मांगती। मैं उठकर बाहर आ गई। मेरे दफ्तर के साथियों ने बारी बारी आकर मुझसे अम्मी की ताज़ियत की। मैं काफ़ी संभल चुकी थी। बासित कुछ देर बाद उठकर बाहर चला गया। मैं उस शाम सर से पूछकर 5 बजे ही घर चली आई। जैसे ही मैं घर पहुंची तो एक हंगामा मेरा मुंतजिर था। वहां पर तीनों चचा, चाची, फुप्पो और फुप्पा जमा थे। घर में घुसते ही उन्होंने मुझे बुरी तरह घेर लिया। तरह तरह की बातें करने लगे। एक से बढ़कर एक तल्ख बात, इल्जामात। फुप्पो ने जाने रो रो कर उनसे क्या शिकायत लगाई थी कि मेरे चचा तो मुझे मारने को दौड़ रहे थे। चचा ने कहा, चुपचाप घर में बैठी रहना, तुम्हारी माँ का 40वां होते ही तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं, और भूखा नहीं मरोगी तुम दोनों, हम लोग ये बोझ भी उठा लेंगे। वैसे भी भाई साहब सारी उम्र तुम्हारी माँ के इशारों पर नाचते रहे। ना वो खुद अच्छी औरत थी और ना ही उसने तुम दोनों की अच्छी परवरिश की।
एक आवारा और बदचलन औरत की बेटियां हो तुम दोनों। सबसे बड़े चचा ने जब ये बात कही तो मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने कहा, चाचा आप मुझसे बड़े हैं, मगर मेरी मरी हुई मां पर इल्जाम तराशी करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम दोनों यतीम जरूर हैं, मगर हम दोनों इंसान हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं। और क्या गलत कर रही हूं मैं? पहले हम यतीम हुए, किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो मैंने इतनी मुश्किलों से नौकरी ढूंढी और अपनी माँ और अपनी बहन का पेट भर रही थी। अब जब माँ भी चली गई तो अपनी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर है ना। और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, एक साफ सुथरी जॉब करती हूँ। मुझे परेशान करने की कोशिश मत करें। मुझे आपकी किसी भी फैसले में कोई दिलचस्पी नहीं। खुदा के लिए हम दोनों को हमारे हाल पर छोड़ दें। घर में इतनी जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर मोहल्लेदार भी बाहर जमा हो रहे थे। चाचियों ने चचा को समझाया और फूफो को भी कि जल्दबाजी अच्छी नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और आप लोग गुस्सा न करें, इस सरकश लड़की का हल अब पूरे खानदान के सामने निकालना होगा। चचा को भी सूरत हाल समझ आ गई थी, इसलिए वो भी खामोश हो गए थे। फूफो ने कहा, मैं कब से इस दरवाजे पर पड़ी हूँ कि मेरी यतीम भतीजियों को मेरी जरूरत है, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर रुकने की, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने उन्हें कहा, ठीक है, यही बेहतर है, और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। सिद्रा बहुत बुरी तरह डर कर रोने लग गई थी। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी बहन को गले लगा लिया। हम दोनों बहनें काफी देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। सहन से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सिद्रा को कहा, चलो बाहर चलते हैं। लगता है वो लोग चले गए। बाहर कोई नहीं था। हमने मेन गेट को बंद किया। खाने को दिल नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी थी। सिद्रा ने फुप्पी के लिए खाना बनाया था। हमने खाना खाया और कमरे में आ गए। अगली सुबह हमारी तवक्कुआत से बढ़कर मनहूस थी। मैंने जब नौकरी पर जाना चाहा तो देखा कि दरवाजे के बाहर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने एहसन सर को कॉल की, उनको सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर आते हैं। 25 मिनट के बाद एहसन सर लेडीज पुलिस के साथ दरवाजे पर मौजूद थे। दरवाजा खोलकर उन्होंने हमें उस घर से बाहर निकलवाया। जो पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे चचा दरवाजा बंद करके ये कहकर गए हैं कि किसी को भी दरवाजा ना खोलने दे। थोड़ी देर बाद ही मेरे चचा भी वहां पर आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके साथ बहुत सख्ती से बात की तो वो आएं बाएं करने लगे। पुलिस को रुखसत कर दिया। एहसन सर ने जब मोहल्लेदारों के बीच में खड़े होकर कहा, ये यतीम बच्चियां हैं, इनके साथ होने वाली नाइंसाफी तो इंसानी फेल नहीं। ये दोनों मेरी बहनें हैं, आइंदा कोई भी इनको परेशान करने की कोशिश न करे। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई। दिन में 11 बजे के करीब एहसन ने मुझे कॉल की और कहा, अनम बासित आपके साथ निकाह करना चाहता है। मैं ये बात सुनकर हैरान परेशान रह गई, मगर जब सर ने समझाया तो मुझे लगा कि यही रास्ता है अपने खानदान के लोगों के हाथों से बर्बाद होने से बचने के लिए। जरा ही देर में सर एहसन की गाड़ी हम दोनों बहनों को लेने आ गई। सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि हम सोच भी नहीं पाए। ऑफिस के कुछ सीनियर लोगों की मौजूदगी में मेरा बासित से निकाह हो गया। मैं बैठी सोच रही थी कि ये क्या हो गया। मेरी बहन मेरा हाथ थामकर मेरे पास बैठी थी। सर ने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे कहा कि आज के बाद मुझे अपना भाई समझना। उसके बाद सिद्रा को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। बासित मेरे सामने आकर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहा और कहने लगा, मैंने ये कदम तुम्हारी और तुम्हारी बहन की भलाई के लिए उठाया है। तुम्हें परेशान या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। जल्दी की वजह से मैं अपने घर वालों को एतमाद में नहीं ले सका, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अगली जिंदगी में हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। फिलहाल तुम एहसन के घर रहोगी जब तक मैं अपने घर वालों को बता नहीं देता। फिर अगला कोई कदम उठाऊंगा। मैं सर नीचे किए उसकी बात सुन रही थी। वो कुछ देर मुंतजिर रहा कि मैं कुछ बोलूं, फिर उठकर बाहर चला गया। ऐसे ही शायद 10 दिन बीत गए। मैं और सिद्रा एहसन सर के घर पर थे। वो दोबारा नहीं आया था। मैं नमाज पढ़कर कुरान मजीद पढ़ रही थी। एकदम से बासित मेरे पास आकर सोफे पर ढेर हो गया। बहुत परेशान और थका हुआ था। मैं सवालिया नजरों से देख रही थी। वो बोला, अनम, मेरे घर वाले किसी भी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं है। मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैंने सोचा था कि अम्मी अब्बू राजी हो जाएंगे, मगर अब्बू ने फुफ्फो की वजह से हंगामा खड़ा कर रखा है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी भांजी उनकी बहू बनकर आए। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जहां मेरी पोस्टिंग है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई आसानी कर दूं, मगर शायद मेरे फैसले से तुम्हें और भी तकलीफ हुई हो। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, कोई बात नहीं, घर वालों का भी कसूर नहीं है। सब कुछ एकदम से हुआ और आप जहां रहेंगे आपके साथ ही रहना चाहूंगी। मसला सिर्फ छोटी बहन का है। मैं चाहती हूँ कि उसकी तालीम अच्छी तरह मुकम्मल हो। जैसे मैंने तकलीफें उठाई उसको ना उठानी पड़े। अब्बू ने घर मेरे और उसके नाम कर रखा है। अकेले रहकर वो घर हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने फैसला किया है कि वो घर बेचकर रकम बैंक में डाल दूं। सिद्रा पढ़ती रहे
اور ہاسٹل میں رہیں۔ باسط نے کافی زور دینے کی کوشش کی، وہ سدرا کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سر نے وہ گھر بکوا دیا۔ میں نے سدرا سے کہا کہ وہ ہاسٹل میں رہے، چھٹیوں میں اس کو لینے آیا کروں گی، اور یوں میں باسط کے ساتھ آزاد کشمیر چلی آئی۔ یہاں ایک سرکاری بنگلہ اس کو دیا گیا تھا۔ سرد موسم، اونچے اونچے پہاڑ، بادلوں کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے وہ پہاڑوں پر اترے ہوئے ہو۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز بہت ڈرامائی تھا، مگر میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا بیٹھے بٹھائے مجھ کو کوئی شہزادہ مل جائے گا۔ باسط پاک فوج میں میجر تھا۔ چند دن میں ہی ہم دونوں اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یہ ساری طاقت نکاح کی تھی، جس نے دو اجنبیوں کو ایک خوبصورت بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس بنگلے میں ایک بٹلر فوج کی طرف سے دیا گیا تھا، جبکہ باسط نے میرے آنے پر ایک مقامی عورت کو ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ ضرورت نہیں، مگر وہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتا اور کہتا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بس تم میرے ساتھ ہی رہو، میں جب بھی گھر پر آؤں تو میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ میں اس کی ایسی باتیں سن کر خود کو مسرتوں کے آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کرتی۔ یہ عورت چپ چاپ گھر کے کام کیے جاتی، بیوہ عورت تھی۔ میں کبھی کپڑے، جوتے اور اضافی اسے دے دیتی، وہ بہت شکر گزار ہوتی۔ ایسے میں اللہ نے میرے گھر خوشخبری دے دی۔ جب باسط کو پتہ لگا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب اس نے میرے اوپر اور بھی سختی شروع کر دی کہ تم بس آرام کرو اور کھاؤ پیو۔ ایسے میں باسط نے اس عورت سے کہا کہ کوئی صاف ستھرا گھر دیکھ کر وہ گاؤں سے دودھ لینا شروع کر دے، کیونکہ تمہاری بیوی کو اب اچھی خوراک دینی ہے اور دودھ کا ہونا لازمی ہے۔ یوں ہمارا گھر ایک مقامی دودھ دینے والا آنے لگا۔ جب بھی مجھے اس گھر میں کچھ خوف سا آتا، مگر میں سمجھتی کہ طبیعت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ کھڑکی کھلی رہتی، ٹھنڈی ہوائیں، دل فریب موسم، کبھی کبھی باہر جاتی تو ملازمہ میرے ساتھ ہوتی۔ ایک روز مجھے گھر سے وحشت سی ہوئی۔ میں ملازمہ کو، جس کا نام چاند بی بی تھا، لے کر باہر گھومنے آ گئی۔ ویسے تو اکثر باسط کے ساتھ ہی باہر آتی تھی، مگر اب پچھلے 2 ماہ سے گھر میں رہنے کی وجہ سے بہت دن بعد اس ماحول کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ چاند بی بی میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ گاڑی میں بٹلر اور ڈرائیور موجود تھے، جو کچھ فاصلے پر رک گئے تھے۔ چاند بی بی نے کہا، بی بی زیادہ پیدل بھی مت چلیے گا، کوئی گڑبڑ ہوئی تو صاحب ہم غریبوں کو ڈانٹیں گے۔ میں ہنسنے لگی۔ میں ایک درخت کی جڑ میں بڑے خوبصورت سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ شاید صنوبر کا درخت تھا۔ بادلوں کی سورج کے ساتھ آنکھ مچولی جاری تھی، ہوائیں چل رہی تھی۔ بٹلر نے جب دیکھا ہم دونوں آرام سے بیٹھے ہیں تو وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ پیاس لگی۔ ملازمہ سے کہا کہ وہ گاڑی سے پانی لے آئے۔ وہ پانی لینے گئی تو ایک لمحے میں میرے پاس ایک بال آ کر گری اور نہایت خوبصورت بچہ دوڑتا ہوا آ گیا۔ میں حیران تھی کہ یہاں کچھ دیر پہلے کوئی نہیں تھا۔ اس بچے کی گلابی رنگت، گال یوں پھولے ہوئے تھے جیسے کندھاری سے، سرخ رنگ کے بال اور بالکل سفید رنگ، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر حیرت سے تھی۔ اس نے نرمی سے میرا گھٹنا پکڑا اور میرے پیروں میں پڑی ہوئی بال اٹھائی۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے کہا، بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ کہاں کھیل رہے ہو آپ لوگ؟ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا تو میں نے دیکھا اس کی ہم عمر ٹولی وہاں کرکٹ کھیل رہی تھی، جو ہماری طرف ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو واپس بلا رہے تھے۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس نے کہا، میرا نام قاسم ہے۔ بال اٹھا لی۔ ایک بار تو وہ چل پڑا، پھر چند قدم پیچھے آیا اور ہاتھ بڑھا کر مجھے ایک پیارا سا سیب دیا اور کہا، اس کو کھا لینا، اور پھر چھلانگے مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ میں سیب ہاتھ میں پکڑ کر ہنستی رہ گئی، اس کا انداز ہی اتنا پیارا تھا۔ ملازمہ پانی لے آئی، میں نے پانی پیا، سیب کو دھویا اور کھانے لگی۔ ملازمہ حیران تھی۔ اس نے پوچھا، بی بی یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اسے بتایا کہ ابھی ایک بچہ آیا تھا، وہ دے کر گیا۔ وہ کافی پریشان سی ہو گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ سیب بہت خوش ذائقہ تھا۔ میں جلدی جلدی ہی سارا کھا گئی۔ بادل ایک دم سے گہرے ہونے لگے تو ملازمہ نے کہا، بی بی پہلے گھر چلتے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ مجھ سے ایک قدم آگے تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سنبھل کر مجھے لے کر چل رہی تھی۔ میں نے چلتے چلتے ایک نظر پیچھے دیکھا تو وہی بچہ اس پتھر کے پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا۔ میں نے بھی ایک ہاتھ ہلا دیا۔ ملازمہ نے جب مجھے ایسا کرتے دیکھا تو سختی سے بولی، بی بی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اس کی آواز عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ ملازمہ نے جلدی جلدی کھانا بنایا۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگی، بی بی میں گھر جلدی جاؤں گی، میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موسم بھی اچھا نہیں، پریشان ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ،
मुझे कोई काम हुआ तो बटलर को दे दूंगी। मैं खाना उसे घर से देती थी। वो, उसकी बूढ़ी सास और 2 बच्चे थे। उसका ससुर शहर में काम करता था। खाविंद फौत हो चुका था। वो खाना लेकर जल्दी चली गई। मैं अपने कमरे में लेटी थी। वैसे तो दरवाजे खिड़कियां बंद ही होती थीं इस मौसम में, मगर आज मेरा बारिश देखने का बड़ा मन था, इसलिए मैंने उठकर खिड़की खोल दी। जब मैंने खिड़की खोलकर दूर पहाड़ की तरफ देखा तो वहां बहुत ही रौनक थी। बहुत सारे बच्चे और लोग वहां अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उनको देखकर मैंने सोचा कि ये लोग तो यहाँ पहले कभी नजर नहीं आते थे। फिर सोचा हो सकता है मौसम की वजह से बाहर निकले हों। एकदम से लाइट चली गई। वैसे तो यहाँ कभी कभी ही लाइट जाती थी। यूपीएस की वजह से मालूम ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए जब एकदम लाइट बंद हुई तो मैं परेशान हो गई। ये मगरिब से कुछ देर बाद का वक्त था। मैंने अंधेरे में फोन ढूंढने की कोशिश की कि बटलर को कह सकूं। वो एक पठान लड़का था जिसका नाम शेरदिल था, मगर मुझे फोन नहीं मिल रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। जाने क्यों आज मुझे खौफ आ रहा था। बादल भी गरजने लगे। बिजली की रोशनी से कमरा पल भर को रोशन हो जाता और फिर अंधेरे में डूब जाता। खौफ की वजह से मैंने खिड़की भी बंद नहीं की थी। मैंने बिस्तर पर बैठते बैठते ही जोर जोर से शेरदिल को आवाज देना शुरू कर दी, मगर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पता नहीं कितनी देर हो गई इसी तरह बैठे हुए। बाहर से तेज बारिश की हवा चल रही थी। मैंने फिर से चिल्लाकर शेरदिल को आवाज दी। कुछ वक्त गुजरा तो मुझे लगा कोई घर में फिर रहा है। पहले मैंने सोचा शेरदिल है। अब की बार मैंने गुस्से से आवाज दी, शेरदिल, लाइट क्यों बंद हुई है और तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी खटपट की आवाज आई। मेरा खौफ से बुरा हाल था। वो जो भी था खामोश था, कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने हिम्मत की। बासित ने मुझे खंजर दिया हुआ था। मजाक मजाक में कहने लगा, इसको अपने पास रखा करो, हो सकता है कभी जरूरत में काम आ जाए। उसको मैं हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती थी। मैंने खंजर निकाल कर उसका कवर हटाया और हाथ में लेकर चौकस होकर बैठ गई। कमरे का दरवाजा खुला तो आने वाले के हाथ में मोमबत्ती थी। उसने कमरे में दाखिल होने से पहले बुलंद आवाज में सलाम कहा। डरते डरते भी मैंने उसको वालेकुम अस्सलाम कह दिया। वो एक अच्छी जिसामत का जवान। उसने खड़े खड़े कहा, बेगम साहिबा, मैं दूध वाला हूँ। दरवाजा खुला है। आपका बटलर कैबिन में मौजूद नहीं था। पहले मैं दरवाजे से अंदर आ गया। काफी देर मैं कैबिन में खड़ा इंतजार करता रहा। जब आपने आवाज़ी देनी शुरू की तो मैं अंदर आ गया। मैं तब से रोशनी के लिए मोमबत्ती ढूंढ रहा था। मेरी जान में जान आई। उसने मोमबत्ती टेबल पर रखी और कहा, परेशान मत हो, मैं बाहर कैबिन में साहब के आने का इंतजार करूंगा। जब तक हो सकता है बटलर भी वापस आ जाए। वो कमरे से बाहर निकलते निकलते रुका और जाकर खिड़की बंद करने लगा। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो फिर बाहर की तरफ बोला, बेगम साहिबा, यहाँ के लोग बहुत गैरतमंद हैं और इज्जतों के मुहाफिज हैं। परेशान होने और डरने की जरूरत नहीं। अब आप उठकर दरवाजा बंद कर सकती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैं जो सोच रही थी उसने वो कैसे महसूस कर लिया। मैं सारी रात इंतजार करती रही। बासित घर नहीं आया। सुबह फजर की अजान के कुछ देर बाद ही इंटरकॉम पर बेल हुई। मैंने फौरन कॉल उठाई। मुझको लगा शेरदिल होगा। दूसरी तरफ वो दूध वाला था। बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कुछ देर में शायद साहब आ जाए और फिर आपकी मुलाजमा भी आ जाए। अगर आपको मुनासिब लगे तो साहब को मत बताइएगा कि रात भर मैं कैबिन में रुका था। वो परेशान भी होंगे और शायद वो कुछ गलत सोचे। उसकी गहरी संजीदा आवाज में कोई बात थी जो मैं फौरन कायल हो गई। अल्लाह हाफिज कहकर मैंने इंटरकॉम रख दिया। मैंने उठकर फजर की नमाज पढ़ी। आज बहुत दिन बाद मुझको ये होश आया था कि जब से मैं यहाँ आई थी मैं इक्का दुक्का नमाज पढ़ती थी। नमाज पढ़कर मैं वापस सो गई। मेरी आंख तब खुली जब बासित ने मुझे उठाया। 10 बज रहे थे। वो सादा सूट में था, मतलब वो घर आके फ्रेश हो चुका था। बासित ने मेरे माथे पे प्यार किया और कहा, इतनी गहरी नींद सोती हो तुम? कमरे में आया, तुम्हें देखा, फिर नहाने चला गया, मगर तुम नहीं उठी। फिर सोचा कि मैं तुम्हें नहीं उठाता, मगर चांद बीबी ने कहा कि शाम तुमने खाना जल्दी खा लिया था, चलो उठो नाश्ता करते हैं। मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा। उठकर बाहर आ गई। गरम गरम नाश्ता टेबल पर रखा था। चांद बीबी चाय बनाने गई थी। बासित से बात करके मालूम हुआ कि रात बटलर अचानक छुट्टी पर चला गया। उसका करीबी अजीज फौत हो गया था। ड्राइवर गाड़ी बनवाने शहर गया हुआ था और चांद बीबी की फोन पर बासित से बात हो गई थी और उसने कह दिया था कि वो आज की रात घर पर ही रुक जाए। मैं ये सारी बात सुनकर बैठी थी। चांद बीबी तो कल शाम 5 बजे ही घर जा चुकी थी, तो फिर बासित से बात किसने की थी? और जब घर पर कोई नहीं था तो दूध वाला कौन था?
जो सारी रात घर के बाहर पहरेदार बनकर मौजूद रहा। मैंने एक दफा सोचा बासित को बताऊं, फिर याद आया कि उस दूध वाले ने मुझसे क्या कहा था। मैं चुप बैठकर नाश्ता करने लगी और जहन वहीं उलझा रहा। बासित ने कहा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, तुम नाश्ता करके कमरे में ही आ जाना। मैं खुद चाहती थी कि वो वहां से चला जाए ताकि मैं चांद बीबी से पूछ सकूं। जैसे ही वो कमरे में गया मैंने चांद बीबी को आवाज दी। वो कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सी खड़ी थी। मैंने कहा, ये तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं? तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम रात मेरे पास रुकी थी? बीबी, मेरी बेटी बहुत बीमार थी, मौसम खराब था, मैं इसलिए गई थी और मुझे सच्ची में नहीं पता था ये बटलर और ड्राइवर भी नहीं होंगे, वरना मैं अपनी सास को भेज देती आपके पास। मगर मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि साहब कह रहे थे कि उनकी मुझसे बात हुई है। एक सर्द सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मगरिब के टाइम से तो लाइट बंद थी। घर में अगर फोन की घंटी बजती तो लाजमी सुनाई देती। दूसरी तरफ अगर बासित को यह पता होता कि मैं रात को अकेली हूं तो वो भी कभी न रुकता, घर आने की कोशिश करता। मुलाजिमा कहने लगी, मैंने सुबह की नमाज पढ़ी थी, ये दरवाजा जोर से बजा। जब मैंने जाके देखा तो वहां सुल्तान खड़ा था। उसने कहा कि साहब घर नहीं, बीबी घर पर अकेली है, तुम आज जल्दी ही चली जाना। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने बस नाश्ता बना के बच्चों को करवाया और अपनी सास के हवाले करके दौड़ी चली आई। दरवाजा बाहर से बंद था। मैं अंदर आई तो आप सो रही थी। मैंने पहले सफाई की, रात की बारिश की वजह से घर गंदा हो रहा था, फिर नाश्ते की तैयारी करके रख दी थी। साहब सुबह 9 बजे आए थे। मुझसे पूछा, रात तुम कहाँ थी? तो मैंने डर कर झूठ बोल दिया। मेरा मूड सख्त खराब था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम जाओ काम करो। कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल सोच रही थी ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बासित की तरफ करवट ली और उसका हाथ पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। जल्द ही मेरी आंख लग गई। मेरी आंख शाम को खुली। बासित तैयार बैठा था ड्यूटी पर जाने के लिए। मुझे देखकर कहने लगा, शुक्र है मलिका आप उठ गई, आपका खादिम कब से आपकी राह तक रहा है। फिर कहने लगा कि क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अगर तबीयत खराब है तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर के लिए ले चलता हूँ। मैंने कहा, तबीयत ठीक है मगर बस सुस्ती सी है। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में हो जाती है। अक्सर खाने पीने का ध्यान रखो और बिल्कुल सोचा मत करो। जितना मर्जी सो, आराम करो, बस मेरे बच्चे को परेशान मत होने देना। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। कुछ देर में उसके जाने के बाद चांद बीबी ने मेरे लिए खाना लगाया। बटलर वापिस आ चुका था। मैंने पूछा, बीबी मैं घर जाऊं या आपके पास रहूं? उसका घर करीब ही बस्ती में था। मैं चाहती थी कि वो अंधेरे से पहले ही अपने घर चली जाए, क्योंकि एक औरत जात को अंधेरे में भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, ठीक है तुम जाओ, और अगर पैसों की या किसी चीज की जरूरत है बच्चों के लिए तो मुझे बता दो। उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, बीबी अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे, अपनी अमान में रखे। मेरी हर जरूरत आप और साहब बिना कहे ही पूरी कर देते हैं। मैंने फिर भी उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि इलाज में जरूरत पड़ सकती है। बटलर को इंटरकॉम पर बुलाया और कहा, जाओ तुम इसके घर छोड़ दो इसको, और आते हुए गांव से सुल्तान के घर से दूध भी लेते आना। कल भी वो काफी देर से आया था, और दरवाजे को बाहर से बंद करके जाना। वो दोनों चले गए। अजान में भी कुछ देर थी। मैंने सिद्रा को कॉल मिलाई, उसके पेपर चल रहे थे। कुछ देर बात करके मैंने कहा, ठीक है इसी तरह नमाज पढ़ूंगी, तुम भी नमाज पढ़ के दुआ करना कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए। मैंने वुजू किया, जाए नमाज उठाई। जाए नमाज पर बैठकर आजान का इंतजार करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। मुझे कल से अपनी तबीयत बहुत हल्की फुल्की लग रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई तब्दीली हुई है जिसको मैं समझ नहीं पा रही। बैठे बैठे मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। मुझे यूं लगा जैसे वहां से कोई निकल कर गया हो, जिसने बहुत ही सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। ये घर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था और कोई आम इंसान बिला वजह यहाँ नहीं आता था। एकदम से अजान होने लगी और मेरा ध्यान अजान की तरफ चला गया। मैंने थोड़ी देर बाद नमाज अदा की और जब मैं उठी तो मैंने खिड़की के बाहर देखा। जिस जगह पर बच्चे और बड़े खेल रहे थे वहां आज भी बहुत से लोग जमा थे और एक आग का अलाव जला कर बैठे थे। गौर से देखा तो वहां कोई तकरीब हो रही है। पहले मैंने सोचा खिड़की खोल कर देखती हूँ। सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स का सोचकर खौफ आ गया। कल मैंने खिड़की नहीं खोली। फिजा में हल्की हल्की मौसीकी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नामानूस आवाज़ में गा रहा हो। साथ ही कोई साज भी बज रहा था। मुझे आवाज़ बहुत प्यारी लगी। सोफे पर शाल लपेट कर बैठ गई। जाने कब मेरी आंख लग गई।
मेरी आंख रात के किसी पहर खुली। मैं अब तक सोफे पर सो रही थी। मैंने वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। मुझे अकेले रहने की आदत तो ना थी, मगर मुलाजमा के बच्चे की वजह से मजबूरी थी। वो भी इंसान थी। उसको रोककर उसकी मजबूरी से कैसे फायदा उठाती मैं। किचन में आ गई। मेरा इरादा दूध गर्म करके पीने का था। मैंने देखा चूल्हे पर बर्तन रखा है। दूध का मैंने सोचा शायद बटलर ने दूध गर्म करके यहीं छोड़ दिया, फ्रिज में रखना भूल गया। मैंने गिलास उठाकर दूध डालने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि तब तक गर्म ही था। मुझको बहुत अजीब लगा। फिर मैंने दूध डालकर पी लिया और कमरे में जाकर सो गई। मुझे अपने पास अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास होता। मैं अजीब उलझन में थी। मेरे काम खुद ब खुद हो जाते थे। मैं नमाज भी पूरी दिलजमी से पढ़ रही थी। मुल्क के हालात ख़राब हो गए। बासित को सरहद के मामलात देखने के लिए अगले मोर्चों की तरफ भेज दिया गया। ये मेरे लिए पहली दफ़ा था कि मैं ना जाने कितने दिन के लिए अकेली रहने वाली थी। बासित ने मुझे बस इतना कहा कि तुम एहसन के पास चली जाओ, मगर मेरा दिल उस जगह से जाने को नहीं किया। मैं अब 8 माह की हामिला थी। बटलर और मुलाजमा दोनों ही मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मुलाजमा अब कभी कभी रात को मेरे पास रुकती थी। डॉक्टर मामूल के मुताबिक चेकअप कर रही थी। सब कुछ ठीक था। एक रोज़ वो हो गया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरे दिन से लाइट बंद थी, जिसकी वजह से यूपीएस भी जवाब दे गया। बटलर कैबिन में था। मुलाजमा को घर इमरजेंसी में जाना पड़ा। मेरी तबीयत रात के वक्त अचानक ही ख़राब हो गई। इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे अब डॉक्टर की ज़रूरत थी। मैंने बटलर को आवाज़ देना चाही, मगर ना दे सकी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मुझे अचानक लगा मेरे पास कोई है। मैं खौफजदा भी थी। मुझे समझ आ रही थी कि ये जो भी है मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब बेहोशी की हालत में जा रही थी। मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। होश होने से पहले मैंने देखा कि मेरे पास 2 औरतें हैं जो मेरी मदद कर रही हैं। अगली सुबह मेरे बराबर में मेरा बेटा लेटा हुआ था। वो दोनों औरतें अब भी मौजूद थीं। मैंने जैसे ही आंख खोली, उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, बेगम साहिबा, बहुत मुबारक हो, आपके घर चांद सा बेटा हुआ है। मैंने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया और जैसे ही पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो एक ने कहा, हमें सरदार ने भेजा है, फिक्र मत करें, हमें हुक्म था आपकी मदद करने का, आप हमारी मेहमान हैं। मैं समझ गई कि ये औरतें नहीं बल्कि दूसरी मखलूक हैं। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर उनमें से एक जो बूढ़ी थी मेरे पास आ गई। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम बहुत दिनों से हम लोगों की नज़र में हो। मुसलसल तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत की जा रही है। इस इलाके में शर फैलाने वाली मखलूक भी थी, मगर तुम इतनी प्यारी हो कि सरदार ने हुक्म दिया कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैं सरदार से मिलना चाहती हूँ। वो दोनों अजीब तरीके से मुस्कुराईं। उनकी आंखें बहुत ही रोशन थीं। बोली, तुम उनसे मिल चुकी हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सफ़ेद कपड़ों की झलक वहां अब भी नजर आ रही थी। कमरे में एकदम मशहूर कुन खुशबू फैल गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने अपना नाम सुल्तान बताया था। ऊंचा कद, चेहरे पर सजी दाढ़ी, सफ़ेद लिबास। वो काफ़ी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने उसको देखा तो मैं किसी शहर में मुब्तला हो गई। कमरे में यूं लग रहा था जैसे हल्का हल्का सफ़ेद धुआं हो। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत और गूंजदार थी। आप और आपका बच्चा हमारे इलाके में हमारे मेहमान हैं। जब कभी मदद की ज़रूरत हो हमें याद कर लीजिएगा। आने वाला वक्त शायद बहुत कठिन हो, मगर आप हमेशा महफूज रहेंगी। वो पलक झपकते ही गायब हो गया। दोनों औरतें मेरे पास थीं। सुबह 10 बजे मुलाजमा आ गई। वो उन दोनों औरतों को देखकर बहुत परेशान थी। फिर मेरे बेटे को देखकर खुशी से झूम उठी। मैंने कहा, ये औरतें पास की बस्ती से हैं। रात जब मेरी तबीयत खराब थी तो शायद मेरी आवाज़ सुनकर मदद को आ गई और अब कुछ दिन मेरे पास रुकेंगी। मैंने बासित को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर उससे बात नहीं हो सकी। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। बासित को गए 3 माह हो चुके थे। अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था। मैं जब भी उदास होती तो सुल्तान फौरी तौर पर आ जाता। एक रोज़ मुझे यूनिट से इत्तला मिली कि बासित शहीद हो गया है। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मेरा शौहर, मेरा महबूब, जिसने भरी दुनिया में मुझको सहारा दिया था, मुझको छोड़कर चला गया। मैं पहले ही यतीम थी। मुझे लगा शायद अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आसपास रहने वाले बासित के दोस्तों और उनकी बेगमात मेरे घर पहुंच गई। बासित की फैमिली को इत्तला दी गई थी। मुलाजिमा ने मेरा सामान तैयार कर दिया। शहीद की मैयत के साथ हमें एयर एम्बुलेंस में कराची जाना था। वो घर जहां मुझे दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी,
آج ان کے بیٹے کی میت کے ساتھ بیوہ بن کر مجھے اس کے گھر جانا تھا۔ مجھ پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ جنات خواتین میں سے ایک جن خاتون میرے ساتھ سائے کی طرح تھی۔ میرا بچہ اسی کی گود میں تھا۔ اس سے یوں مانوس تھا جیسے وہ اس کی ماں ہو۔ ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ باسط کے گھر والے پہنچ چکے تھے۔ اس کا باپ اور بھائی خاموش تھا کیونکہ ابھی ان کے محکمے کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین ہو گئی۔ جیسے ہی گھر سے مہمانوں کا جم غفیر رخصت ہوا، میری ساس کسی پاگل کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے بہت مارا، بہت بری طرح مارا، بد دعائیں دی اور کہا کہ تم ڈائن ہو، تم نے جیتے جی مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک دن وہ لوٹ آئے گا، مگر تم مجھ سے کھا گئی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں عدت میں تھی۔ میرے سسر دیور خاموش تھے۔ میری ساس نے شور مچایا کہ وہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دے گی۔ احسن بھائی بھی مجبور تھے۔ میری چھوٹی بہن خود ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میری ساس نے احسن سے کہا، سب تمہاری شے کا نتیجہ ہے، میں تمہیں بیٹا سمجھتی تھی، تم نے تو دشمن بن کر میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ یہ کس خاندان کی تھی؟ جانا ہے یہ بچہ جو اس کی گود میں ہے یہ بھی میرے بیٹے کا ہے یا نہیں؟ میں خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میری بہن کو احسن نے واپس ہاسٹل بھیج دیا۔ اس نے ساس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ جب احسن نے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہا تو احسن کی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ جن عورت جو میرے ساتھ تھی بہت غصے سے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ میرا سامان پھینک دیا گیا۔ احسن اپنے گھر جا چکا تھا۔ میں صحن میں کھڑی امداد طلب نظروں سے اپنے سسر اور دیور کی طرف دیکھ رہی تھی مگر وہ پیٹ پھیر کر اندر چلے گئے۔ اس جن عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئی۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں سلطان موجود تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے گہرے سائے تھے۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور جانے کس منزل کی طرف چل پڑی۔ کراچی میں ہی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی جا کر رکی۔ اس عورت نے مجھ سے میرا بچہ لے کر مجھے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ سلطان نظریں جھکائے ہمارے پیچھے پیچھے تھا۔ بنگلے میں بہت سی خواتین اور بچے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سبھی جنات کے قبیلے ہیں۔ وہاں پر میرا استقبال کیا گیا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر میرا ماتھا چوما اور کہا کہ میں سلطان کی ماں ہوں اور آج سے تمہاری بھی۔ اس کے گلے لگ کر پھوٹ کر رو دی۔ 3 دن سے بے بکی کا جو بوجھ اٹھا کر میں شل ہو چکی تھی، ایک مہربان آغوش میں آ کر میں ٹوٹ گئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ وہ بچہ جو اس دن مجھے پہاڑ پر ملا تھا وہ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا وہ دوڑ کر آ کر اس سے لپٹ گیا۔ سلطان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ خوبصورت عمارت تھی، ہر چیز سفید رنگ کی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میری عدت کے دوران کوئی غیر محرم میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے میں صدیوں سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میرا بچہ 8 ماہ کا ہونے والا تھا۔ میری عدت ختم ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن گل جان جو کہ سلطان کی والدہ تھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، انم بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن جاؤ۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میرا بیٹا تمہاری ایک جھلک پر اپنا ہوش کھو چکا ہے۔ اس کے اندر عشق کی چنگاری پھوٹ پڑی ہے۔ بیٹا اس کی حالت پر رحم کرو، وہ تمہاری ایک نظر کا منتظر ہے۔ میں ماں ہوں، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور میں تمہاری بھی ماں ہوں۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرتی، مگر یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ میرا بیٹا تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نہ جانے کتنے دن بعد باہر چلی آئی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سامنے لان میں کوئی بیٹھا تھا۔ مجھے لگا وہ سلطان ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آگے آ گئی۔ اس کی گود میں کوئی بچہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ بچہ بابا بابا کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرا بیٹا اصلان ہی سلطان کی گود میں تھا۔ میں جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی میں سمجھ سکتی تھی۔ ایک دم سے بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی بارش نے مجھے چھوا، سلطان نے بازو بڑھا کر مجھ کو اپنے سائے میں کر لیا۔ مجھے لگا جیسے دنیا رک گئی ہے۔ اس کے جسم پر 2 خوبصورت پر تھے جس نے مجھے اور میرے بیٹے کو بارش سے مکمل چھپا لیا۔ تحفظ کا یہ احساس میری رگوں میں سکون بن کر اتر گیا۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خاموشی سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ جب میں مسکرائی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی خوشی تھی۔ ایک فوجی افسر کی شہید بیوہ اور یتیم بچہ جس کو اپنے خاندان نے ٹھکرا دیا تھا،
ایک جنزادے نے اپنے عشق کی لاج نبھا کر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا لیا تھا۔ رات کو ہم دونوں نکاح کے پاک بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی پر چھائے ہوئے غم کے بادل ایک دم سے چھٹ گئے ہیں۔ میرے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہٹ گیا۔ مجھے لگا شاید باسط کی روح بھی خوش ہوگی۔ رات کو پورا گھر محل کی طرح سجایا گیا۔ میرے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی تھی۔ ہم دونوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنی تھی۔ میرا بیٹا اپنی دادی کی گود میں تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ ایک طویل صبر آزما سفر کے بعد مجھے منزل مل گئی تھی۔ کیا میری خوشیاں برقرار رہیں گی؟ سلطان کا ساتھ میری زندگی کا صحیح فیصلہ ہے؟ ایک یتیم لڑکی کو سہارا دینے والے یہ جنات کیا انسانوں سے بڑھ کر مخلص نہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ تھی میری کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔